बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। अंडाल ब्लॉक में भूमि माफियाओं ने मृत व्यक्ति का फर्जी कागजात बनाकर 1 बीघा जमीन बेच दी है। इस धोखाधड़ी से इलाके में सनसनी फैल गई। जिले के अन्य हिस्सों की तरह अंडाल ब्लॉक क्षेत्र जमीन माफियाओं का उत्पात चरम पर है। चाहे वो राज्य सरकार की वेस्टेड जमीन हो या ईसीएल की भूमि, माफियाओं की नजर हर जमीन पर है। अब स्थिति ऐसी है कि आम लोगों की भूमि सुरक्षित नहीं है, साथ ही साथ मृत लोगों की भूमि भी मरे हुए व्यक्ति के नाम पर फर्जी दलील बनाकर जमीन बेचने वाले एक शख्स को काजुड़ा गांव के लोगों ने बुधवार शाम को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। घटना में आरोपी का नाम दिलीप रुईदास बताया गया है। वो अंडाल के दक्षिणी खंड का निवासी है। उन्हें बताया गया था कि काजुड़ा गांव के निवासी मृतक अक्षय कुमार सार्वभौम के नाम पर दक्षिण खंड क्षेत्र में लगभग 1 बीघा भूमि थी। आरोप है कि दिलीप ने धोखाधड़ी की और खुद को अक्षय कुमार सार्वभौम बताकर जमीन बेच दी। पुलिस अभियुक्त से हिरासत में पूछताछ कर रही है। आरोपी दिलीप रुईदास शाम में बाजार आए थे, तब स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ लिया और उससे पूछताछ की तो उसने जमीन की बिक्री को कबूल कर लिया और कहा कि उसे काम के बदले में 5,000 रुपए मिले। उन्होंने अक्षय कुमार सार्वभौम के नाम पर अपने आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को बदलकर ऐसा किया। एक वकील ने उसे ऐसा करने के लिए कहा और स्थानीय लोगों की पूछताछ में उसने ये कबूल किया। ना এটা বহুদিন ধরে চলছে, আস্তে আস্তে ধরা পড়ছে। আজকে একটা কেস ধরা পড়লো কি 2016 সালে আমাদের গ্রামেরই অক্ষয় কুমার সার্বভৌম বলে এক ব্যক্তি মারা গেছে। তো তার যত সমস্ত জমি টমি আছে, নথি আছে, দক্ষিণ খণ্ড দিলীপ রুইদাস বলে এক ভদ্রলোক তার নিজের নামে আধার কার্ড, প্যান কার্ড যত সমস্ত আছে ডকুমেন্ট বানিয়ে ওনার মানে অক্ষয় কুমার সার্বভৌমের নামে বানিয়ে সমস্ত কিছু ফ্রড করে বিক্রি করে দিয়েছে। তো এটা কাজড়া গ্রামবাসীরা আমরা মোটামুটি সবাই জানতাম। আজকে হাটে ওরা কোনো একটা কাজে এসেছিল, ওখানে কাজড়া প্রায় 150 থেকে 200 গ্রামবাসী ওনাকে ধরে ফেলে। ধরে কিছুক্ষণ ধরে রাখার পর অন্ডাল থানারকে ডেকে তার হাতে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া। এই যে ফ্রড আমার নামে, মানে এটা কারা এটা যুক্ত আছে, তারা তো আমার মনে হয় সবাই জড়িত আছে। নাহলে এইরকম ফ্রড হয় কি করে? এই একটা না, হাজারে হাজারে চলছে এইগুলো। না তা তো ওইটাই বলছি, যেটা হয় কি করে। दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना अंतर्गत विधाननगर क्षेत्र में एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर लूट का प्रयास करने वाले 2 अपराधियों को स्थानीय नागरिकों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। विधाननगर फाड़ी के समक्ष स्थित एक निजी बैंक के एटीएम में 2 संदिग्ध युवकों ने प्रवेश किया। दोनों अपराधी मशीन का स्क्रू खोलने का प्रयास कर रहे थे, तभी वहां तैनात सफाई कर्मी की उन पर नजर पड़ी। सफाई कर्मी के शोर मचाने पर निकटवर्ती नागरिक और एटीएम सुरक्षा कर्मी सतर्क हो गए। मौके की नजाकत भांपते हुए एक अपराधी भागने में सफल रहा, किंतु दूसरा स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया। भीड़ ने उसे पुलिस को सौंप दिया। ঘটনা অ্যাকচুয়ালি ঘটেছে, আমি হাউসকিপিং করতে আসছিলাম এখানে পরিষ্কারের জন্য। কোন জায়গায় এটা হচ্ছে ডিডি মার্কেট। হ্যাঁ, ডিডি মার্কেট। আর আমি পরিষ্কার করতে আসার সময় দেখি 2টো চোর ভিতরে ঢুকেছিল। আমি তাদেরকে বলি যে কি করছেন আপনারা এখানে, মেশিনটা এখানে টানাটানি কী করছেন? তো একজন দৌড়ে পালিয়ে যায় আমাকে ধাক্কা দিয়ে, আর একজনকে আমি ধরি। তারপরে ঘটনাটা বুঝতে পারলাম এরা চোর। এরা মেশিনটা কিছু একটা লাগিয়েছিল, সেটা আমি দেখলাম, বাট সেটাকে ছাড়ালাম। তারপরে একজনকে ধরে তারপরে পুলিশকে ফোন করা হয়, তারপরে পুলিশরা ওকে ধরে নিয়ে যায়। ঠিক আছে, আপাতত এটাই। কোথাকার ওরা জানা গেছে না, এখন তো পুলিশ জানতে পারবে সেটা কোথাকার ওরা। কটার সময় ঘটনাটা ঘটে আপনার 10:30টায়। 10:30 সময় সকালই কেস। হ্যাঁ, সকাল কেস এটা। নিরাপত্তার জন্য এখানে নিরাপত্তা বলে কিছু থাকে না, বাট এখানে শুধু হাউসকিপিংয়ের জন্য আমি আছি, শুধু পরিষ্কারের জন্য। পরিষ্কার এটিএমটাকে যাতে পরিষ্কার। ব্যাংকে জানানো হয়েছে? ব্যাংকে স্যারকে জানিয়ে দিয়েছি। আমাদের যে কন্ট্যাক্ট যে আমাকে দিয়েছে সেই কন্ট্যাক্টে স্যারকে আমি জানিয়ে দিয়েছি। উনি বললো আমি সব কিছু দেখে নিচ্ছি। উনি জানিয়ে দিয়েছি কন্ট্রোল রুমে যেখানে, সেখানে জানিয়ে দিয়েছি।
ওরা কি টাকা পাকা নিয়ে না এখন টাকা পয়সা কিছু বার করতে পারিনি এখানে, টাকা পয়সা বার করতে পারিনি। এনারা ব্যাংকে এখন খবর পেয়েছে, এখন ব্যাংকের লোক আসবে কখন কি মেশিনটা। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে হ্যাঁ, পরিমল বিশ্বাস। আপনি এখানকার বাসিন্দা? আমি এখানকার বাসিন্দা। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने सालानपुर के उन मरीजों से मुलाकात की जो स्थानीय फैक्ट्रियों से धूल और धुएं से सिलिकोसिस नामक बीमारी के शिकार हो गए हैं। अग्निमित्रा ने स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सालानपुर के रामडी और बराभाई गांव के कई घरों में जाकर सिलिकोसिस से पीड़ित मरीजों की हालचाल पूछे। इन मरीजों को सांस लेने में समस्या होती है। मरीजों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में स्थानीय प्रशासन के साथ ही मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगी। রামডি গ্রামে এখানে প্রচুর এরকম মানুষ যাদের শ্বাসকষ্ট প্রচণ্ড, লাংস পুরো খারাপ হয়ে গেছে, তারা সব এই ক্রাশারের ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, মানে যেখানে কোয়ার্টজ পাথর কাটা হচ্ছে, সেই ডাস্টে তাদের একটা অসুখ হচ্ছে সিলিকোসিস। ডাস্টটা ওড়ার কথা নয়, যদি পলিউশন বোর্ড স্ট্রিক্ট থাকে আর যদি যেই কোম্পানিতে তারা কাজ করছে সেটা যদি ঠিক মতো দেখা হয় যে তোমাকে এই মেজার্স নিতে হবে, পলিউশন বন্ধ করতে হবে, তাহলে কিন্তু এই লোকগুলো অসুস্থ হয় না, আজকে মনিলাল হেমব্রমের মতো। কিন্তু কোম্পানিগুলো প্রফিট করার জন্য যতটা নিয়ম না মেনে এই মমতা ব্যানার্জির সরকারকে ঘুষ খাইয়ে প্রতিটা জায়গাতে ঘুষের চলছে আপনারা জানেন, সেইখানে আজকে পুরোপুরি পলিউশন, এই ধুলো থেকে তাদের একটা অসুখ হয় সিলিকোসিস। এই সিলিকোসিস যদি হয় তাহলে বেশ কয়েক লক্ষ টাকার কম্পেনসেশন রাজ্য সরকারকে দিতে হবে এই ধরনের মানুষদের। কিন্তু সিলিকোসিস সরকারি হাসপাতালে গিয়ে সিলিকোসিস লিখছে না, তারা লিখছে টিবি, টিউবারকুলোসিস, এবং টিবির ওষুধ দিচ্ছে। টিবির ওষুধ খেতে খেতে তাদের মৃত্যু হচ্ছে। এরা বড়জোর 1 বছর 2 বছর এইরকম তারা বাঁচছে। এবং এখানে বিভিন্ন ফ্যাক্টরি রয়েছে যেখানে এই কাজটা চলছে। আজকে এসেছি অনেক দিন ধরে, আমার ভাই অমর, অভিজিৎ, বাবন এরা এই মুভমেন্টটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এরা ন্যাশনাল হিউম্যান রাইটস কমিশনে কমপ্লেন করা হয়েছে এবং এটি আমি দিল্লিতেও এনএচআরসিকে আমার তরফ থেকে জানানো হবে। সরকারকে একটা চিঠি দেব, সময় দেব, যদি এদের এই কম্পেনসেশন এবং চিকিৎসা না করে তাহলে আমরা একদম রাস্তায় নেমে আন্দোলনে। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजना द्वारे सरकार का 9वां चरण चल रहा है। इस मौके पर आज लच्छीपुर के योनपल्ली में भी द्वारे सरकार का शिविर लगाया गया। प्रशासन के अधिकारी यहां पर आए और उन्होंने इस योनपल्ली महिलाओं को पश्चिम बंगाल सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश की। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार की कोशिश है कि उनकी सरकारी परियोजनाओं के लाभ से कोई भी वंचित ना रहे। इस वजह से आज यहां पर इस शिविर को लगाया गया है, जिसमें राज्य सरकार के साथ जन कल्याणकारी परियोजनाओं का सीधा लाभ इन्हें पहुंचाया जा रहा है। দুয়ারে সরকার ক্যাম্প আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা বিশেষ উদ্যোগ, 9ম এডিশন চলছে এবং প্রতিটি ক্যাম্পে আমাদের জেলা শাসক মহাশয় যাচ্ছেন, আমাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক স্যার এখানেই আছেন, জেলা শাসকও প্রতিটি ক্যাম্পেই প্রায় যাচ্ছেন এবং এখানে দেখা যাচ্ছে মানুষের অভূতপূর্ব সারা, সবাই মিলে আসছেন ক্যাম্পে, ফর্ম জমা দিচ্ছেন এবং আমাদের আরও যে আলাদা পরিষেবা যেগুলো হেলথ চেক আপও করাচ্ছেন, আমাদের 37টা পরিষেবা 37 নম্বর পরিষেবা করা পরিষেবা যুক্ত হয়েছে, এগুলো সবগুলোর ইয়ে করছেন। এবং আজকে এখানে আমাদের যে যারা এখানের বিশেষ ক্যাম্প করা হয়েছে, আমাদের মাননীয় জেলা শাসকের নির্দেশ অনুসারে আমাদের মাননীয় জেলা শাসক এসেছে, তো এখানে আমাদের কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশন জমা পড়েছে যে এখানে যদি দুয়ার সরকার ক্যাম্প করা যায় তাহলে তারা বিভিন্ন যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে বিভিন্ন ধরনের সরকারি সাহায্য আছে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ওল্ড এজ পেনশন বা আমাদের খাদ্যসাথী অর্থাৎ রেশন কার্ড, তার সঙ্গে আরও যা যা পরিষেবা হয় সেগুলো সাহায্য হবে। তো আমরা দেখলাম এখানে এসে কিন্তু সবাই যারা এখানকার যারা আছেন, যারা কর্মী আছেন, তারা এখানকার আমাদের এখানে পরিষেবা নিচ্ছেন এবং আমরা আশা করবো যে এখানে এই ক্যাম্প থেকে তারা সবাই মোটামুটি
সব যারা যারা বেনিফিশিয়ারি আছে সবাই এই সাহায্য পাবে। फिर से कोलेरी क्षेत्र में चोरी की घटना हुई, जिससे कोलेरी की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। बुधवार रात 12 बजे के आसपास अंडाल थाना अंतर्गत छोरा 7/9 नंबर पीट कोलेरी के पंप हाउस में लोहे की भारी मशीन की चोरी हुई, जिसका मूल्य अनुमानित 1 लाख रुपए से ज्यादा है। समाचार प्राप्त करने के बाद ही अंडाल थाने की बनबहाल फाड़ी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। ईसीएल के विभिन्न इलाकों में कभी कोलेरी के गोदाम से लोहे की मशीन की चोरी तो कभी गाड़ी की बैटरी की चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निजी सुरक्षाकर्मी रहने के बावजूद भी ईसीएल के गोदाम में और पंप हाउस में चोरी की घटनाओं से ईसीएल की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि इस बारे में इस कोलेरी के ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के किसी अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। आसनसोल में समाज सेवी कृष्णा प्रसाद के नेतृत्व में आज शाम कल्ला मोड़ में लिट्टी चोखा उत्सव का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत कुंभ में मृत तीर्थयात्रियों के श्रद्धांजलि के साथ की गई। मोमबत्ती जलाकर और मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। यहां बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रदेश तृणमूल सचिव जिला परिषद के मेंटर वी शिवदासन दासू के जन्मदिन पर जमकर जश्न मनाया गया। जीटी रोड तृणमूल कार्यालय के समक्ष जमकर आतिशबाजी की गई। उन्हें बधाई देने के लिए समर्थकों का तांता लगा रहा। शाम से लेकर देर रात तक केक काटने और बधाइयों का दौर चला। आसनसोल के रविंद्र भवन में गुरुवार को गंधर्व कला संगम की तरफ से वार्षिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। यहां पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए गंधर्व कला संगम के आसनसोल यूनिट के अध्यक्ष सचिन रॉय ने कहा कि गंधर्व कला संगम का ये वार्षिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। पिछले 15 वर्षों से गंधर्व कला संगम की तरफ से विशेषकर आदिवासी बहुल इलाकों में बच्चों और युवाओं को आगे लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उनके अंदर जो प्रतिभा है उसकी प्रतिभा को निखारने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही अगर कहीं पर आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है तो गंधर्व कला संगम की तरफ से आदिवासी समाज के लोगों को वो आर्थिक मदद भी पहुंचाई जाती है। 15 वर्ष पूरे होने की खुशी में आज गंधर्व कला संगम की तरफ से वार्षिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। गंधर्व कला संगमेर आज के অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম ছিল কালচার প্রোগ্রাম। এটা হচ্ছে 15 ইয়ার্স সেলিব্রেশন হচ্ছে। গন্ধর্ব কলা সঙ্গমের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে ট্রাইবাল মেয়েদের নিয়ে, ট্রাইবাল ছেলে মেয়েদের নিয়ে অনুষ্ঠান করা, তাদের আপগ্রেডেশন করা, তাদেরকে সামনে নিয়ে আসা, গরিব ছাত্রছাত্রী যারা আছে, পিছিয়ে পড়ার যারা মানুষ আছে তাদেরকে সামনে নিয়ে আসা, তারা আর্থিকভাবে সহায়তা করা, এভাবে বিভিন্ন রকম কালচার প্রোগ্রাম তাদেরকে নিয়ে আসা, বিশেষ করে আদিবাসী ছেলে মেয়েদেরকে সামনে নিয়ে আসা যাতে তারা এগিয়ে আসে, পিছিয়ে পড়া যারা রয়েছে কিছু মানুষ তাদেরকে সামনে নিয়ে আসে। এরকম এই সংস্কৃতির মাধ্যমে তাদেরকে সামনে নিয়ে আসতে হয়। কারণ এইসব পড়াশোনা করতে অনেক পছন্দ করে, কিন্তু গান বাজনা করতে অনেক পছন্দ করে, বা যাদের একটা আর্থিক অবস্থা খারাপ তাদেরকে কিছু আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের সামনে নিয়ে আসতে। এইভাবেই গন্ধর্ব কলা সংগম সারা বৎসরব্যাপী এগুলো কাজ করে। सिम्फनी लिमिटेड ने आसनसोल में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स उद्योग के प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ एक प्रतिष्ठित डीलर्स मीट का आयोजन किया। इस आयोजन का नेतृत्व सिम्फनी लिमिटेड के आसनसोल शाखा प्रमुख अमित प्रसाद ने किया। उन्होंने उपस्थित मेहमानों का स्वागत किया और एक प्रेरणादायक और आकर्षक अवसर की शुरुआत की। सिम्फनी के वरिष्ठ महाप्रबंधक मार्केटिंग चंद्रदीप पैतंडी, आसनसोल के डीलर्स गुलशन छावड़ा, प्रवीण चाचड़ा आदि अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। सिम्फनी के वरिष्ठ महाप्रबंधक मार्केटिंग चंद्रदीप पैतंडी ने डीलर्स के सिम्फनी के अत्याधुनिक कूलिंग सॉल्यूशन की नवीनतम श्रृंखला से परिचित कराया गया, जिसमें साइलेंजो, मैक्सफिंट, आर्किटेक सर्कल और एयर फोर्स सीरीज शामिल है। ये एयर कूलर भारतीय घरों की विविध कूलिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और इनमें अत्याधुनिक तकनीक, आकर्षक डिज़ाइन और उपयोग में आसान विशेषताएं शामिल है। इसके अलावा सिम्फनी ने अपने नए लॉन्च किए गए गीज़र और टावर फैंस भी पेश किए।
आज हमारा यहाँ का आसनसोल ब्रांच का पार्टनर्स मीटिंग जी इस साल का हर साल हम सीजन शुरू होने से पहले एक सब डीलर के साथ एक डीलर मीट करते हैं, तो जिसमें हम नया प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं हमारा सब अनवील करते हैं। इस बार हमारा रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च है, 17 न्यू मॉडल्स हैं। वो तो कूलर में है, बाकी हमारा जो और एक डिवीजन है दैट इज टावर फैन में हम नया चीज़ लेके आ रहे हैं। इस टाइप का शायद किसी ने यहाँ पे किया नहीं होगा इंडिया में। और फिर हम जो अभी नया चीज़ लेके आए हैं वो है गीज़र, वाटर हीटर। तो गीज़र में भी बहुत सारे ब्रांड हैं, पर हम गीज़र में जो नया चीज़ लेके आए, जो आई थिंक दुनिया में या इंडिया में तो पहला है ही, हम लेके आए हैं हेयर फॉल कंट्रोल गीज़र। ऐसा गीज़र जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। जितने भी गीज़र ब्रांड सब लोग यही बात करते हैं कि हम पानी को गर्म करते हैं, तो सभी करते हैं, और हम कुछ ऐसा लेके आए कि जो किसी ने पहले सोचा नहीं होगा। उसके साथ एक हम नया एक इंटेलिजेंट AI कंट्रोल पावर कंट्रोलर दे रहे हैं, जो कि वाटर प्रूफ है। जो आप बाथरूम का दीवार पर लगा दीजिए, ऐसा हाथ ऐसे करिए और फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज आसनसोल कोर्ट के निकट उनकी प्रतिमा पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से माल्यार्पण किया गया। इस बारे में नगर निगम के MMIC गुरुदास चैटर्जी ने कहा कि आज राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से कोर्ट के पास बनी उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके साथ ही मोहितशिला में उनकी प्रतिमा पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जिन आदर्शों के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, हम सबको उन आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।